دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 22 پیشکش میر کارواں۔ وہ اپنے تازہ ترین مہمان ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم انہیں کہاں سے پکڑ کر لائے ہو؟ یہ لوگ تمہاری تلاش میں بھٹک رہے تھے۔ میں نے کہا، میں نے انہیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ وہ بے بسی اور غصے کی شدت سے کپکپانے لگا۔ او چودھری دلدار کے! میں نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر کے اس کا جملہ نامکمل چھڑا دیا اور غضبناک انداز میں اسے کہا، کسی جائز وقت کی ناجائز اولاد، تم پہلے بھی مجھے منشا اور چودھری دلدار کے نام سے دھمکا چکے ہو، لیکن یاد رکھو تمہارے وہ دادا پر دادا تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرے اگلے ٹارگٹ یہی دونوں افراد ہیں۔ اگر انہوں نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو وہ بھی تمہیں نظر نہیں آئیں گے، اس تہانے میں اسی سنگین اور ٹوٹے پھوٹے پختہ فرش پر۔ پھر آقا اور غلام ایک ہی فرش پر بچ جائیں گے، نہ کوئی خادم رہے گا نہ ہی کوئی مہدوم۔ میرے لہجے میں اس قدر سختی اور قطعیت تھی کہ قادر بخش کو چپ لگ گئی، تاہم وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے تاہانے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کمرے کے واحد روشن دان کا جائزہ لیا تھا اور یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ روشن دان کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی تھی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ قادر بخش کوئی نہایت ہی شریف النفس اور فرمانبردار شخص تھا۔ دراصل زرگل کے ساتھ یہ اس تہانے سے رخصت ہوتے وقت میں نے اس بات کی تسلی کر لی تھی کہ روشن دان پر تمام آزمائی کا سامان وہاں موجود نہ ہو۔ اگر گینڈا طاقت آزمائی پر اڑ بھی جاتا تو زیادہ سے زیادہ وہ روشن دان کی آہنی گرل کو ہی اکھاڑ سکتا تھا۔ اس کے بعد انہیں وہاں سے فرار ہونے میں کامیابی حاصل نہ ہوتی، کیونکہ اس روشن دان میں سے کسی انسان کا گزر ممکن نہیں تھا۔ وہ محض 6 چوڑا اور 3 فٹ لمبا ایک شگاف تھا جو روشنی اور تازہ ہوا کی آمد و شد کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ گینڈا نما قادر بخش کا ساتھی فیض احمد ہنوز بے ہوش مگر زندہ تھا۔ اس کے 2 بے ہوش ساتھی مزید وہاں پہنچا دیے گئے تھے۔ جلال کا ہوش و حواس میں رہنا کسی بھی لنگڑی مدد سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں نے صدف کے ساتھ مل کر ان کے پاؤں اور ہاتھوں کو نائلہ ان کی مضبوط ڈوری سے کس کر باندھ دیا۔ اس طرح وہ ایک طرح سے بے دست و پا ہو گئے تھے کہ صرف امداد طلب نظروں سے ہی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے، کسی کے کام آ سکتے تھے اور نہ ہی کسی کو اپنے کام میں لا سکتے تھے۔ میں نے قادر بخش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تم اب بھی اسی شرافت کا ثبوت دو گے جس کا مظاہرہ پہلے کر چکے ہو۔ اگر زندہ سلامت رہنا چاہتے ہو تو صبح ہونے کا انتظار کرو۔ کل فرید پاشا یہاں آ کر تمہاری قسمت کا فیصلہ کرے گا، اور اگر کل کا سورج نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتے تو پھر قسمت آزما کر دیکھ لو۔ اس کے بعد میں جلال کی طرف متوجہ ہوا، تمہیں میں اس لیے ہوش و حواس میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ قادر بخش کو سمجھا سکو۔ اگر یہ کسی نادانی کا ارادہ کرے تو اسے ٹوک دینا۔ ہم تینوں ملن ایکسپریس میں بیٹھ کر یہاں پہنچے ہیں۔ اپنے حالات سے تمہیں سمجھوتا کرنا ہوگا، ورنہ ملن ایکسپریس ابدی جدائی کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ وہ بے اختیار اس بات میں سر ہلانے لگا، اس کی ان جنبشوں میں بے پناہ خوف اور دہشت سمٹ آئی تھی۔ میں نے تہانی میں موجود ہر شے پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور صدف کے ساتھ باہر آ گیا۔ واپسی پر میں نے اسی محسوس تکنیک سے دروازہ بند کیا اور ہم حال نما کمرے میں پہنچ گئے۔ صدف کی حالت بہت ہی عجیب ہو رہی تھی، وہ پھٹ پڑنے کو تھی۔ میں اگر اس کی نہ سنتا تو جانے اس پر کیا قیامت گزر جاتی۔ کیسا لگ رہا ہے صدف؟ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے معتدل لہجے میں دریافت کیا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، خدا کی پناہ، یہ سب بہت ہی سنسنی خیز ہے۔ تمہیں ایسی سنسنی ہی کی تو تلاش تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی اور تشویش بھری نظر سے مجھے تکنے لگی۔ کیا ہوا صدف، تم خاموش کیوں ہو؟ وجدان، وہ سرسراتی آواز میں بولی، تمہیں لاہور میں قدم رکھے ابھی چند ہی روز ہوئے ہیں اور تم نے اتنی زیادہ دشمنی بڑھا لی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ میرے اور پاشا کے مجموعی دشمن ہیں۔ اب تمہارے پاشا انکل تو یہاں ہے نہیں، ان کی شفٹ میں بھی مجھے ہی چلنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت میں ڈبل ڈیوٹی پر ہوں۔ وہ ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگی جسے میں کوئی مفہوم یا معنی نہ پہنا سکا۔ اس کی نگاہ میں حیرت بھی تھی اور دلچسپی بھی، فخر بھی تھا اور ستائش بھی، محبت بھی تھی اور فرمائش بھی۔ میں نے اس کی ہزار معنی نگاہ سے نظر چراتے ہوئے کہا، صدف تمہیں تو ان حالات میں بہت مزہ آ رہا ہوگا۔ بقول خود تم ہاسی مہم جو واقع ہوئی ہو، اسے ٹھہرے ہوئے انداز میں موضوع بدل دیا۔ اگر اس کوٹھی کی مہم جئی نبٹ چکی ہو تو ہمیں فوراً یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ ادھر پاشا انکل کی دوسری کوٹھی پر بھی ہماری اشد ضرورت ہے، وہاں کے حالات کو یقینی نہیں کہا جا سکتا۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے کہا، لیکن فوری طور پر روانہ ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ میں نے حیرت بھری نظر سے
उसे देखा और कहा, शायद तुम भूल गई हो कि हम जिस जीप के जरिए यहाँ पहुंचे थे वो हैंड्स अप हो चुकी है। अब तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं फाजलिया कॉलोनी से गुलबर्ग 3 तक गाड़ी को धिक्का लगाऊं। धिक्का लगाने के जिक्र पर उसने इस्तजाबिया नजर से मुझे देखा, फिर तशवीशनाक अंदाज में बोली, फिर हम वापस कैसे जाएंगे? एक लम्हे को रुककर उसने इजाफा किया, अगर कहो तो मैं अपने मामू को फोन कर देती हूँ। फोन के जिक्र पर मैं चौंक उठा और मुझे याद आ गया कि जब आज शाम के वक्त में इस कोठी में बरसरे बेकार था तो किसी हिस्से में फोन की घंटी बजी थी। बाद अज़ां अल्लादिता ने मुझे बताया था कि फरीद पाशा ने फोन के जरिए मुझसे राब्ता करने की कोशिश की थी। इस कोठी में फोन की मौजूदगी खुशकुन बात थी। मैंने सदफ से कहा कि इन हालात में तुम्हारे मामू को इन्वॉल्व करना मुनासिब नहीं होगा, वो वैसे भी पुलिस वाले हैं। एक बात के 100 मतलब और एक मतलब के 1000 महफूम निकालेंगे। मैं अल्लादिता से राब्ता करता हूँ। क्या इस वीरान कोठी में फोन मौजूद है तो लेकिन तलाश करना पड़ेगा, आओ मेरे साथ। मैंने कहा। सदफ मेरे हम कदम हो गई। थोड़ी देर के बाद हम एक ऐसे ड्राइंग रूम नुमा कमरे में पहुंच गए जहां फोन सेट मौजूद था। मैंने फरीद पाशा की कोठी का नंबर डायल किया। दूसरी घंटी पर फोन अल्लादिता ने रिसीव कर लिया। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे यहाँ की हैरियत आफियत के बारे में बताया और वहां की हैरियत के बारे में पूछा। जवाब उसने कहा, साहब जी यहाँ तो सब ठीक है, आप अपने बारे में बताएं। हमारे साथ एक मसला हो गया है। मैंने कहा, हमें फौरी तौर पर एक गाड़ी की जरूरत है ताकि हम यहाँ से निकलकर तुम्हारे पास पहुंच सके। जीप में कुछ ऐसी खराबी हो गई है कि वो हमारा कहना मानने से इनकारी है। आप जिस मिशन पर गए थे उसका क्या रहा? मिशन कामयाब रहा है। अल्लादिता ने कहा, वजदान साहब, इस वक्त गैराज में टोयोटा करोला और हाई रूफ खड़ी है। आपके लिए कौन सी गाड़ी मुनासिब रहेगी? मैंने कहा, दुश्मनों से छीनी हुई हाई रूफ को फिलहाल बाहर निकालना ठीक नहीं होगा, इसीलिए टोयोटा चलेगी। क्या तुम खुद गाड़ी लेकर आओगे? जो आपका हुक्म, वो फर्माबरदारी से बोला। वैसे तहसीन ने भी पाशा साहब की वो कोठी देखी हुई है। तहसीन को डिस्टर्ब ना ही करो तो बेहतर है। मैंने कहा, वो बेचारा उस कोठी में आराम व आसाइश के लम्हात गुजारने आया था और यहाँ पर क्याम की पहली रात ही उस पर भारी पड़ गई। थोड़ा वक्फा देकर मैंने इससे पूछा, वो अपनी बीवी के पास ही है ना? नहीं जनाब, वो इस वक्त मेरे पास बैठा है, अल्लादिता ने बताया। मैंने जरगुल को आराम करने के लिए ऊपर भेज दिया था। तहसीन का कहना है कि जब तक आप यहाँ वापस नहीं आ जाते वो भी मेरे साथ जागता ही रहेगा। ठीक है, फिर तुम दोनों आपस में सलाह मशवरा करके फैसला कर लो। मैंने कहा, जिसे भी हमारी तरफ आना है फौरन निकल पड़े, मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। राब्ता खत्म हुआ तो सदफ ने मुझसे पूछा, वजदान, मेरा ख्याल है 15 मिनट में इनमें से कोई यहाँ पहुंच जाएगा। रात की इस पहर तमाम सड़कें से हाली मिलेंगी। क्या हम यहीं बैठकर इंतजार करें या गेट पर चलें? मैंने कहा, मेरे ख्याल में हम निसान में जाकर बैठते हैं। वो फिलहाल सफर के काबिल नहीं रही तो क्या हुआ, लेकिन एक बड़ी आरामदेह नशिस्तगाह तो वो अब भी है। सदफ ने मेरी बात से इत्तफाक किया और हम मुख्तलिफ कमरों के दरवाजे बंद करके कोठी के खुले हुए गेट के पास आ गए। गेट के नजदीक ही वो जीप खड़ी थी जहां हमें बैठकर सवारी का इंतजार करना था। रात ठंड और सन्नाटे में डूबी हुई थी। आसमान पर आहरी तारीखों का चांद अपनी महसूस आबोताब दिखा रहा था। मैंने निगाह उठाकर आसमान की तरफ देखा तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो चांद मुझे देख रहा हो। ये चांद भी अल्लाह की क्या खूब तहलीक है। जो भी इसकी तरफ देखता है ये इसी को देखने लगता है। ये एक ऐसा महबूब है जो किसी से जालस नहीं होता, ना ही किसी को हसद में मुब्तला करता है। बाज लोग तो अपने महबूब को चांद से तशबीह देते हैं और मगरिब में तो बाकायदगी से इस निस्बत से एक महसूस त्योहार भी मनाया जाता है जिसे रोजे महबूब सेंट वैलेंटाइंस डे कहा जाता है। हर साल 14 फरवरी को मनाए जाने वाले इस दिन लोग अपने महबूब का इंतजार करते हैं और अपनी महबूब हस्ती के साथ वो दिन गुजारते हैं। मैं गैर इरादी तौर पर चांद और महबूब के बारे में सोच रहा था कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई तीसरा शख्स भी हमारे पीछे आ रहा हो। मैंने बेख्तियार पलटकर अकब में देखा लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कोठी के सहन में हर जानब खामोशी और चांदनी का बसेरा था। सदर ने पूछा, वजदान क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने उलझनज़दा नजर से उसे देखा और एक मरतबा फिर अपने अकब में निगाह दौड़ाई। वो बोली, तुम अचानक इस तरह पलटे थे जैसे पीछे से किसी ने तुम्हें आवाज दी हो। मुझे यूं लगा था जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा है। मैंने साफ गोई का मुजाहरा किया लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं। वो दोबारा मेरे साथ जीप की तरफ कदम बढ़ाने लगी। वो तुम्हारा वहम होगा, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। मैंने कहा, हाँ वो मेरा वहम ही हो सकता है। मुझे हैरत है वजदान, वो एकदम गहरी संजीदगी से बोली, तुम जैसा पुरस्कार और अजूबा शख्स भी वहम में मुब्तला हो सकता है। मैं समझ गया कि वो मुझे घेरने की कोशिश कर रही थी।
तुमने मुझ में ऐसी कौन सी पुरस्कार और अजीब बात देखी है? जब बचाव की कोई सूरत नजर न आई तो मैंने उसी से पूछा। वो तो पहले ही भरी बैठी थी। मेरे पूछने ने उसके जब्त के बंद खोल दिए। उसे जीप के बैक व्यू मिरर में जो हैरतनाक मनाजर देखे थे उन्हें दोहराया था। फिर एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुकी और पूछा, मैं इन वाकयात को क्या समझूं वजदान? अब ये न कह देना कि वो सिर्फ मेरी नजर का धोखा था। वो तुम्हारी नजर का धोखा नहीं था सदफ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। चलो आराम से गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। हम दोनों खामोश खड़ी निसान पेट्रोल में आकर बैठ के मैंने मुख्तसर मगर जामिया अल्फाज में सदफ को शाओलिन टेम्पल में अपनी मार्शल आर्ट्स की तरबियत के बारे में बताया। वो हैरत और दिलचस्पी से मेरी कहानी सुनती रही। वो खुद भी मार्शल आर्ट्स की माहिर थी, इसलिए भी ये मौजू उसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। दुनिया का एक कोई स्टूडेंट या मास्टर नहीं जो शाओलिन टेम्पल से वाकिफ ना हो। हर मार्शल आर्टिस्ट का ये ख्वाब है कि वो उसे शाओलिन टेम्पल नामी जगह में फैज उठाने का मौका मिले, लेकिन ये सादत खुशकिस्मत अफराद के हाथ में ही आती है। ओ, तो तुमने चीनी कंगफू शाओलिन टेम्पल से सीखा है? वो हैरत भरी आवाज में बोली। जब भी मैं कहूँ कि तुम्हारी मूवमेंट्स में इतनी परफेक्शन क्यों है? मैंने कहा, शाओलिन टेम्पल में सिखाया जाने वाला कंगफू दर हकीकत शाओलिन कंगफू कहलाता है, जिसकी बुनियाद जानवरों की लड़ाई के अंदाज पर रखी गई है। शाओलिन कंगफू की तरबियत सिर्फ काबिल एतमाद और अहल स्टूडेंट को ही दी जाती है। तो तुम वहां भी अपने मास्टर्स की आंख का तारा रहे। सदफ ने कहा, तुम्हारी दास्तान के खुलासे से तो मैंने यही नतीजा हासिल किया है। मैंने कहा, तुम ऐसा नतीजा अहज करने में हक बजानिब हो। शाओलिन टेम्पल में मुझे 2 वजूहात की बिना पर बहुत अहमियत दी गई थी और बादजा मैंने खुद को इस सलूक का हकदार भी साबित किया। और वो 2 वजूहात कौन सी हैं? मैंने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, पहली वजह तो ये थी कि मेरे उस्ताद मोहतरम महाराज वांग याई ने मुझे बैंकॉक से शाओलिन टेम्पल भेजने का खास एहतमाम किया था। मैं बैंकॉक में महाराज के जिम्नाजियम में रहते हुए आर्म बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और थाई बॉक्सिंग की तरबियत ले चुका था। मोए थाई बॉक्सिंग थाईलैंड का मारूफ मार्शल आर्ट है। महाराज ने मुझे कोई खास बात नोट की थी और फैसला किया कि मुझे अपने उस्ताद मास्टर हिंग पाई के पास शाओलिन टेम्पल भेजेंगे। हिंग पाई उस वक्त शाओलिन टेम्पल का सबसे बड़ा मास्टर था और वहां इंतजाम और इंसराम उसी के इशारे पर चलता था। इसी हवाले से वो मेरा दादा उस्ताद था। मैं एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, और दूसरी वजह यह थी कि मैंने शाओलिन टेम्पल में पहुंचकर मास्टर्स को अपने फन की सच्चाई से मुतासर कर लिया था। पहले मुझे आम छोटे मास्टर्स के हवाले किया गया, लेकिन थोड़ी ही अरसे के बाद मास्टर हिंग पाई बराह रास्त मुझे तरबियत देने लगे। मैंने उसी ग्रैंड मास्टर से कंगफू, योगा और ची की खसूसी तरबियत हासिल की थी। मैं अचानक खामोश हो गया और फिर दिल गिरफ्तार लहजे में कहा, अफसोस कि मेरे उस्ताद महाराज वांग विंग याए और दादा उस्ताद मास्टर हिंग पाई अब इस दुनिया में मौजूद नहीं रहे। मैं अपने हकीकी वालदैन से तो बचपन ही में महरूम हो गया था। अब रूहानी वालदैन का साया भी मेरे सर पर नहीं रहा। वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखती रही। इन अफसुर्दा लम्हात में उसने मेरे निजी मामलात को नहीं छेड़ा और संजीदगी से बोली, पुरस्कार कुव्वत ची के बारे में मुझे कुछ तफसील बताओ। मैंने जीप के हवाले से थोड़ी देर पहले ची का जो मुजाहरा देखा है वो नाकाबिले यकीन और सनसनीखेज है। मुझे भी इस पर हैरत है। मैंने कहा, शायद ची की एडवांस मशकों की बदौलत मैं इसकी कोई अरफा शक्ल हासिल कर रहा हूँ। छोटे मोटे तजर्बात तो पहले भी होते रहते थे, लेकिन आज तो हद ही हो गई। क्या तुम कंगफू के साथ साथ मुझे ची की तरबियत भी दोगे? सदफ के इस सवाल ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था और बेसाख्ता मेरे लबों से फिसल गया। उसे भी बहुत शौक था ये सब कुछ सीखने का। तुम किसका जिक्र कर रहे हो वजदान? वो संजीदगी से मुझे देखने लगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो संभल कर जल्दी से कहा, मैं किसी खास शख्स का जिक्र नहीं कर रहा। ची वाकई एक दिलचस्प मौजू है कि हर कोई इसे हासिल करने का हाँ नजर आता है। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प कुव्वत है। तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। वो टटोलती हुई नजरों से मुझे देखते हुए बोली, तुम्हारी आंखें जुबान के साथ नहीं दे रही हैं। तुम यकीनन किसी खास हस्ती का जिक्र करने वाले थे, ऐसी हस्ती जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती हो। अब तुम बात को बदलकर मुझे मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? सदफ 0% भी गलत नहीं कह रही थी। मैं बेहयाली में साहिर का जिक्र करने वाला था। एहतियात के बावजूद भी इस वक्त मैं साहिल का तस्करा कर बैठा था। साहिल को भी मार्शल आर्ट्स और ची की तरबियत का बहुत ही शौक था, बल्कि मैंने उसकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी।
कराची में इम्तियाज अली के फ्लैट में क्याम के दौरान में मैं एक रोज अली सुबह हिल पार्क में उसे इस सिलसिले में ले गया था और उसे एक तवील और मालूमात से भरपूर लेक्चर दिया था। चीख बेदारी के सिलसिले में इब्तदाई मशक अपनी निगरानी में कराई थी। फिर इससे पहले कि मैं उसे मजीद कुछ सिखाता, वक्त के दस्ते जुल्म ने उसे मुझसे जुदा कर दिया। मैं साहिल की तलाश में दिन रात अंगारों पर लौट रहा था और अब मेरी मंजिल मुझसे चंद घंटों के फासले पर रह गई थी। तुलुए आफ्ताब के साथ ही मुझे सैयदपुर रवाना हो जाना था और फिर रखा वाली से चंद मिनट की दूरी पर वहां मेरी साहिल मौजूद थी। मेरी रूह, मेरी जान तमन्ना साहिल एक जाबर शख्स के कब्जे में थी। मैं बेसाख्ता साहिल के बारे में सोच रहा था। अंदरून और बैरून का मामला भी अजीब होता है। हम बैरूनी चीजों के बारे में साख्ता सोचते हैं। हमारी सोच में इरादे का दखल होता है और ये एक खुद साख्ता अमल होता है, लेकिन अंदरूनी मामलात में हमें अपनी सोच और अमल पर एख्तियार नहीं होता और हम बेसाख्ता ये हरकत करते हैं। इसके लिए नीयत बांधने की जरूरत पड़ती है, ना ही इरादा करने की। साहिल मेरे अंदरून के एक गोशे पर काबिज थी। उसका एहसास मेरी नस में बसा रहता था और मेरा तस्वुर उसके बारे में महकता था। लेकिन मैं भी एक इंसान था और हर इंसान अपने फितरी और जबिली मुतालबात से मजबूर होता है। ये तकाजे नजरअंदाज करने के लिए हद दर्जा बेहिस्सी की जरूरत होती है और मैं एक दर्जा भी बेहिस नहीं था। मेरे हवा से हमसा फाल थे। मैं छूने वाली हर शय को छूना और देखने वाली हर चीज को देखना चाहता था। मैं अपनी कुव्वते शामा को आजमाना चाहता था, कुव्वते गोयाई और कुव्वते जायका को परखना बरतना चाहता था। और इस सब के लिए मुझे साहिल की जरूरत थी। मुजस्सम साहिल मेरे एख्तियार में हो। हिजर के करब और विसल के सरूर से वही लोग आशना है जो कभी इन कैफियत से गुजरे हों। इन खुशनुमा शरारों को किसी लजीज शय की तरह निगलना पड़ता है, एहतियात और ज़रफ के साथ, कि न आपकी जुबान पर आबला पड़े, न आपके चेहरे से किसी तकलीफ का इजहार हो। सदफ टिकटिकी बांधे सवालिया नजर से मुझे देखी जा रही थी। मैंने उसको मुतमईन करने की खातिर कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम हाँ के मतलब ना निकालो। तुम बताना नहीं चाहते तो मैं इसरार नहीं करूंगी। वो अक्लमंदी से मौजू बदलते हुए बोली, खैर तुम ची के बारे में मुझे कुछ बताने जा रहे थे। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि वो मेरी बात से कतन मुतमईन नहीं हुई थी। मैंने एक तवील सांस खारिज की और उसे ची गोंग के बारे में तफसील बताने लगा। वो ये सुनकर हैरत ज़दा रह गई कि ची की मदद से किसी भारी भरकम शय को पलक झपकने में उठाया जा सकता है। अपनी गर्दन पर तलवार का वार सहकर भी जिंदा रहा जा सकता है। नेज़े की अन्नी पर शेरक टिकाकर अपने जिस्म को हवा में बुलंद किया जा सकता है। एक आम सुई को 2 उंगलियों की चुटकियों में दबोचकर अगर उसे किसी चीज पर फेंका जाए तो वो तबाह बर्बाद कर सकती है। उसे यह बस्ता पानी में घंटों बैठा जा सकता है। लोहे की दहकती हुई सलाख को मुस्कुराते हुए पकड़ा जा सकता है और सैकड़ों किस्म की बीमारियों का शाफी इलाज किया जा सकता है। मैंने ये तमाम मुजाहरे शॉलन टेम्पल में देखे थे, लेकिन इसके लिए ची पर मुकम्मल अबूर हासिल करना जरूरी होता है। बात बहुत सादा और मौसर है। नाफ के अकब में रीढ़ की हड्डी के नजदीक मौजूद इस हाबीदा कुव्वत को बेदार करना इतना मुश्किल काम नहीं जितना इस पर काबू रखना अहम है। कुदरत ने जानवरों के पेट के अंदर बड़े ही इसरार रखे हैं। इस थैले में पोशीदा कुव्वतें बहुत ही कैफावर, हाबनाक, लज्जत आफरीन और हयात बख्श होती हैं। ये यूज और मिस यूज का खेल है। दुरुस्त इस्तेमाल करने वाले फायदा उठाते हैं और फैज पहुंचाते हैं, जबकि गलतकारों को अपने करतूतों के सबब जिल्लत और रुसवाई उठाना पड़ती है। वो महलूके खुदा को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो अलग है। कहने और सुनने का सिलसिला जारी था कि कोठी के बाहर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। लगता है ये गाड़ी हमारे लिए आई है। सदफ ने ख्याल आराई की। मज़कूरा गाड़ी कोठी के गेट के करीब आकर रुक गई थी और सदफ का ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। मैंने अदकुले गेट में मौजूद फरीद पाशा की टोयोटा करोला को पहचान लिया था। गाड़ी की अगली सीट पर तहसीन को देखकर मुझे हैरत हुई। उसने अपनी नौबेहता बीवी को कोठी पर छोड़कर हमारी तरफ आने का कसद किया था, तो ये बड़ी हिम्मत की बात थी। मैं तो अल्लाह दिता की आमद तवक्का कर रहा था। तहसीन और नाहिद की जोड़ी देखकर मुझे झटका लगा था। जो भी उन्हें देखता और उसे बताया जाता कि वो दोनों मियाँ बीवी हैं तो वो जरूर हैरान होता। नाहिद दराज कामत और वो शक्ल औरत थी। कदरे फरबा जिस्म और सांवली रंगत ने उसे जाज़बे नजर और पुरकशिश बना दिया था, जबकि तहसीन में मर्दाना वजाहत वाली कोई बात दिखाई नहीं देती थी। वो पस्ता कामत और बस एवं सी जिसामत का मालिक था। सब चेहरे उसी हालत के बनाए हुए हैं। किसी कमरों की तहकीर नहीं करना चाहिए, ताहम मेरी नजर में वो एक मिसमैच जोड़ा था।
तहसीन टोयोटा को कोठी के बाहर छोड़कर अंदर आ गया। इस दौरान में हम दोनों भी निसान पेट्रोल से बाहर आ गए थे। तहसीन ने मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, वजदान साहब, जीप में क्या खराबी पैदा हो गई है? अगर मैं फॉल्ट के बारे में कुछ जानता तो मुमकिन है उसे ठीक भी कर लेता। मैंने कहा, इस मामले में मुझे कोई तजर्बा नहीं है। वो अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए बोला, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसके इंजन के साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर लूं। फिल्म लाइन में आने से पहले मैंने बहुत धक्के खाए थे। मैं मुख्तलिफ काम करता रहा जिसमें मोटर मैकेनिक भी शामिल है। अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो हमें क्या एतराज हो सकता है? मैंने कहा, और चाबी इग्निशन में लगी हुई है, तुम कोशिश करके देख लो जब तक हम टोयोटा में जाकर बैठते हैं। उसने अस्बात में सर हिला दिया और पूछा, इसे हुआ क्या था? इंजन अचानक बंद हो गया था, मैंने बताया। कोठी में अंदर आने के बाद या बाहर कहीं? मैंने जान छुड़ाने की खातिर कहा कि कोठी के गेट पर पहुंचकर। फिर मैंने धकेल कर इसे अंदर पहुंचाया है। मैं उसे सूरत हाल से आगाह करके अपने लिए मजीद सवालात के दरवाजे नहीं खोलना चाहता था। तहसीन ने अस्सानुमा ग्लासेस वाला चश्मा एक मरतबा फिर दुरुस्त किया और निशान के साथ मसरूफ हो गया। मैंने सदफ की मैयत में करोला की जानिब कदम बढ़ा दिए। चांद मजीद खुलकर सामने आ गया था और इस दौरान दरपर्दा चांदनी में हर चीज चमकती हुई नजर आ रही थी। इस हावनाक माहौल में ठंडक को सांस के जरिए अपने अंदर उतारते हुए हम अभी बाहर खड़ी गाड़ी तक पहुंचने भी नहीं पाए थे कि अकब में निशान के स्टार्ट होने की महसूस आवाज उभरी। मैंने पलट कर देखा, जीप वाकई स्टार्ट हो चुकी थी। सदफ ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये तो वाकई मोटर मैकेनिक निकला। उसने अपनी महारत से जीप का इंजन बेदार कर दिया। हम चलते चलते रुक चुके थे। तहसीन जीप से निकलकर हमारे पास आया और मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, किस गाड़ी में चलेंगे, करोला या पेट्रोल? तुमने जीप के साथ क्या किया है? मैंने हैरत अमेज लहजे में कहा, इसमें कौन सी ऐसी खराबी पैदा हो गई थी जो तुमने पलक झपकने में ठीक कर दी? वो मोटी तह वाले गिलासेस के पीछे से अपनी आंखें सुकेड़ते हुए बोला, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी जनाब। मैंने इसे स्टार्ट करने की शरीफाना कोशिश की और इसने किसी फर्माबरदार बीवी की तरह फौरन बात मान ली। उसके बयान पर मुझे हैरत हुई, ताहम मैंने अपनी सोच को पोशीदा रखते हुए उससे पूछा, तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, ये फर्माबरदार और नाफरमान बीवियों का तजर्बा तुम्हें कहां से हो गया? वो एकदम चींप गया, फिर खसियाना होकर बोला, वो जी तजर्बा तो नहीं, मैंने तो बस ऐसी ही एक सुनी सुनाई बात कह दी थी। तुम नहीं जानते कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। इससे अक्सर धोखा हो जाता है और गलतफहमियां पैदा होती हैं। मैंने महज उसे तफरीह लेने की गरज से वो अंदाज अपनाया था। फरीद पाशा का दोस्त होने के नाते वो मुझसे इस कदर मरूब था कि फौरन आजिजी से बोला, मैं आइंदा ख्याल रखूंगा जनाब। मैंने कहा, जब तुम्हारी शादी को 2 साल गुजर जाएं और आइंदा कभी हमारी मुलाकात हो तो फिर मैं तुमसे बीवियों के तजर्बात के बारे में सवाल करूंगा। तुम उस वक्त जो भी जवाब दोगे उसमें वजन होगा। बीवी और शोहर के बारे में जो तजर्बा किए बगैर राय दी जाएगी उसकी सेहत मशकूक होगी। वो खामोशी से अस्बात में सर को झटका देते हुए बोला, मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि हम वापस जाएंगे। तो कैसे जाएंगे? उसने मुझसे पूछा कि आप वापस कौन सी गाड़ी में जाएंगे? मैंने कहा कि निसान पेट्रोल को तुम ड्राइव करो, हम तो करोला में जाएंगे, लेकिन इससे पहले तसल्ली कर लो कि जीप रास्ते में तुम्हें परेशान नहीं करेगी। अगर ये फिर किसी मुकाम पर बंद होगी तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे हम। तुम या तो रात का बाकी हिस्सा अपनी बीवी से दूर जीप के अंदर गुजार दोगे या फिर तुम्हें धक्का लगाकर इसे गुलबर्ग 3 तक पहुंचाना होगा। अगर तुम किसी तरह धक्के वाले मिशन में कामयाब हो भी गए, जो कि एक नामुमकिन काम है, तो फिर भी तुम्हारी रात काली हो जाएगी। अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करना। मैंने फैसला कर लिया है जनाब, वो 2 टोक लहजे में बोला, मैं इसी जीप में जाऊंगा। मुझे यकीन है कि ये किसी भी किस्म की गड़बड़ नहीं करेगी। एक लम्हे का तवक्कुफ करके उसने कहा, मुझे तो एक बात की हैरत है कि आप उसने हिचकिचाहट अमेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने कहा, तुम रुक क्यों गए? कहो क्या कहना चाहते हो? मेरी बात का बुरा तो नहीं मनाएंगे? बिल्कुल नहीं। आइंदा 5 मिनट में तुम जो कुछ भी कहोगे मैं उस पर नाराज नहीं होऊंगा। मैंने फरीद पाशा के असिस्टेंट से मसीद तफरीह लेते हुए कहा, हाँ, उसके बाद की मैं गारंटी नहीं लेता। और तुम्हारे वो 5 मिनट शुरू होते हैं। बात खत्म करते ही मैंने एक चुटकी बजाई। सदम मेरी शरारत को अच्छी तरह समझ रही थी, इसलिए वो खामोश खड़ी थी। तहसीन ने महदूद मुद्दत से फायदा उठाते हुए अपने दिल की बात कह दी। मैं इस बात पर हैरान हूँ वजदान साहब कि जीप तो बिल्कुल ठीक है, कहीं आपने मेरा मजाक उड़ाने के लिए तो नहीं मुझे बुलाया? मुझे इसकी सोच पर हंसी आ गई, लेकिन उस हंसी के पस पर्दा एक तशवीश भी मुझे लाहक हो गई। तहसीन अगर ऐसा कह रहा था कि जीप में कोई खराबी मौजूद नहीं तो वो गलत बयानी से काम नहीं ले रहा था। फिर मेरी ड्राइविंग के दौरान में वो अचानक बंद क्यों हो गई थी?
ये एक गौर तलब और सनसनीखेज सवाल था। इस सनसनीखेजी को बेपनाह तकवीयत उस वाक़े से मिलती थी कि पुश लगाते वक्त गाड़ी को धकेलकर कोठी तक लेकर आया था, इस एहसास के साथ कि दूसरा भी कोई मेरे कदम ब कदम जीप को पुश दे रहा है। वो जो कोई भी था मुझे नजर नहीं आया था, ताहम मैं अपने इस एहसास को जुटला नहीं सकता था। थोड़ी देर पहले भी मैंने महसूस किया था कि कोई शख्स मेरे पीछे आ रहा है और सदफ ने इसे मेरा वहम करार दिया था और मैंने उसे खामोश करा दिया था। लेकिन मेरे अंदर अब भी कोई कह रहा था कि वजदान ये कोई और ही चक्कर है। क्या चक्कर है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जब कोई बात वाज़ेह न हो तो इंसान का जहन उलझ जाता है, और वाकई इस वक्त मैं बहुत ही उलझा हुआ था और ये उलझन उस वक्त तक बरकरार रहती जब तक वो नादीदा शख्स मेरे सामने ना आ जाता। पता नहीं वो कोई शख्स था या कोई नादीदा कुव्वत थी या फिर ची की ही कोई कार फरमाई। फिलहाल मैं इस सिलसिले में कोई हतमी बात नहीं कह सकता था। तहसीन अपने ख्यालात का इजहार करने के बाद मेरे जवाब का मुंतजिर था और उसे तसल्ली बख्श जवाब देना मेरे बाएं हाथ का खेल था। उसे वाकई एक अहमकाना बात की थी। मैंने उससे कहा, तहसीन तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है। अव्वल तो मेरा तुमसे मजाक बनता नहीं, इसलिए मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। ये तो मैं जानता हूँ। वो मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल पड़ा, इसीलिए तो मैं परेशान हो रहा हूँ। तुम्हारी परेशानी हुस्साख्ता है। मैंने कहा, अगर तुम बीच में मुदाखलत ना करो तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी जी आप कहें, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा, तुम्हारी तसल्ली के लिए इतना ही बता देना काफी होगा कि मैंने बराह रास्त तुमसे यहाँ आने को नहीं कहा था। मैंने फोन पर अल्लाह दिता को अपनी मजबूरी बताई थी। तुम या तो उसके कहने पर आए हो या फिर अपनी मर्जी से आए हो। तुम्हारा ख्याल हमसे कहीं ज्यादा अल्लाह दिता को होगा, और वैसे भी तुम्हारे इस ख्याल को मैं वहम से ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। बात आई समझ में? सॉरी सर, वो नदामत अमीज लहजे में बोला। दरअसल ठीक ठाक जीप ने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर तुम इसी जीप में जाकर बैठो जो ऐसे गलत किस्म के ख्यालात तुम्हारे जहन में पैदा कर रही है। मैंने ज़ेर लब मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। कोठी को बंद करने के बाद जब हम वहां से रुखसत होने लगे तो अचानक मेरे जहन में एक ख्याल ने सर उबारा। मैंने तहसीन को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम लाहौर ही के रहने वाले हो? जी हाँ, बाप दादा की हड्डियां यहीं दफन हैं। उसने फखरिया लहजे में कहा, मैं भी यहीं की पैदाइश हूँ। फिर तो तुम इस शहर से भी अच्छी तरह वाकिफ होगे? मैंने पूछा। चप्पे चप्पे से वाकिफ हो जनाब, उसने कहा कि बेकारी और बेरोजगारी के दिनों में मैंने बहुत सफर किया है, उर्दू का भी और अंग्रेजी का भी। मैंने पूछा, ये अंग्रेजी का सफर क्या होता है भाई? वजदान साहब, मैं दरअसल SUFFER वाले सफर की बात कर रहा हूँ। वो वजाहत करते हुए बोला। बहुत खूब, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। मैं गुलबर्ग 3 जाने से पहले जरा मुस्लिम टाउन की तरफ एक चक्कर लगाना चाहता हूँ। मुझे एक कोठी की झलक देखना है। ये ख्याल अचानक ही मेरे जहन में चमका था। आज शाम से अब तक मैं किसी तुर्रम खान मोहम्मद मंशा के चमचू से ही नबुर्द आजमा रहा था। इत्तफाक से गैरनुमा कादर बख्श ने अपने बास मंशा का पता उगल दिया था, लिहाजा मैंने सोचा क्यों न इस नए दुश्मन का ठिकाना भी देख लूं। किसी वक्त भी इन मालूमात की जरूरत पेश आ सकती थी। तहसीन ने पूछा, आप मुस्लिम टाउन में किसी खास जगह जाना चाहते हैं या बस ऐसे ही चक्कर लगाना है? मैंने बताया है ना कि मुझे कोठी की झलक देखना है। उस कोठी का आप पता क्या है? मैंने तहसीन को मंशा की आप पारा मार्केट वाली कोठी का पता समझा दिया। वो बोला, मेरी मालूमात के मुताबिक ये कोठी आप पारा के करीब ही पड़ेगी। वहां जाने के लिए हमें वहदत रोड पकड़ना होगी। बस तो ठीक है, मैंने कहा। तुम पहली फुर्सत में वहदत रोड पकड़ लो। जब तुम मेरी मतलूबा कोठी के सामने पहुंचो तो इंडिकेटर देना। हम जीप के पीछे थोड़ा फासला रखकर चलेंगे। मुझे मालूम हो जाएगा वो कोठी कौन सी है और कहाँ पर वाक़या है। रुकना बिल्कुल नहीं। ठीक है वजदान साहब, मैं आपकी हदायत पर अमल करूंगा। तहसीन ने कहा, अगर आपकी बताई हुई कोठी दाएं तरफ पड़ी तो मैं दाया इंडिकेटर और बाएं तरफ पड़ी तो मैं बाया इंडिकेटर दूंगा। फिर हम आगे पीछे फाजलिया कॉलोनी वाली पाशा की कोठी से रवाना होंगे। हम शाह जमाल रोड पर आने के बाद शादमान कॉलोनी की तरफ नहीं गए, बल्कि हमारा रुख उस वक्त फेरोजपुर रोड की जानिब था। तहसीन जीप में हमसे आगे था और हम लगभग 100 गज का फासला रखकर उसके अकब में जा रहे थे। गाड़ियों की रफ्तार मोतदिल थी। मेन फेरोजपुर रोड हासी कुशादा सड़क है। फिर वो रात का आखिरी पहर था, इसलिए भी वो हमें हाल ही मिली। हम आगे पीछे चलते हुए गैलेक्सी और रहमानपुरा से गुजरे। फिर आइंदा सिग्नल से तहसीन ने जीप को दाएं तरफ मोड़ दिया। रात के उस वक्त सिग्नल्स की पाबंदी जरूरी नहीं थी। मैंने तमाम सिग्नल्स को फ्री कर दिया जाता है। तमाम सिग्नल्स को फ्री कर दिया जाता है मतलब सुर्ख और सब्ज बत्तियां लंबी ओढ़कर सो जाती हैं और सिर्फ पीली लाइट नाइट वॉचमैन का किरदार अदा करती है और मुसलसल जल बुझ में मसरूफ रहती है।
मैंने भी तहसीन की तकलीद में करोला को दाएं जानब टर्न किया। अब हम वहदत रोड पर थे। थोड़ी ही देर के बाद आपरा मार्केट आ गई, फिर तहसीन रिहायशी इलाके में घुस गया। 2 मिनट बाद उसकी गाड़ी का इंडिकेटर अपना फंक्शन करने लगा। मैंने उसके इशारे पर अपनी मतलूबा कोठी को देख लिया। वो एक छोटी सी 2 मंजिला सफेद रंग की कोठी थी। मैंने मज़कूरा कोठी के सामने से गुजरते हुए नेम प्लेट पर निगाह दौड़ाई। वहां किसी शमशाद अली एडवोकेट का नाम लिखा था। पता वही था, कादर बख्श की जुबानी मेरी याददाश्त में जो महफूज था। मैं दिल ही दिल में मंशा नामी उस शख्स की चालाकी की दाद दिए बगैर न रह सका। वकील वाले नेम प्लेट की आड़ उसने खूब निकाली थी। ये तो मुझे तवक्का थी कि कोठी की नेम प्लेट पर मुझे मोहम्मद मंशा का नाम नजर नहीं आएगा, लेकिन किसी एडवोकेट का भी मैंने तसव्वुर नहीं किया था। चंद गलियों में घूमकर तहसीन हमें नहर के किनारे ले आया और फिर एक जगह उसने जीप रोक दी। मैंने उसके बराबर करोला रोकी और सवालिया नजर से उसे देखा। उसे पूछा, वजदान साहब, आपका मकसद पूरा हो गया या नहीं? तुमने इसकी कोठी की निशानदेही कर दी है। मैंने जवाबन कहा, मैंने वहां तक पहुंचने का रास्ता भी अजबर कर लिया है। अब हमें फौरी तौर पर वापस चलना है। तहसीन ने सफेद कोठी और उसके मकीन के बारे में कोई सवाल नहीं किया और बोला, ठीक है, आप मेरे पीछे आए। अब हम दूसरे रास्ते से घर जाएंगे जो शॉर्टकट भी है। एक मरतबा फिर हमारा सफर शुरू हो गया। नहर के किनारे चलते हुए हमने फिरोजपुर रोड को अबूर किया और फिर एफसी कॉलेज के पास से गुजरते हुए हम थोड़ा आगे जाकर गुलबर्ग में एंटर हो गए। लाहौर के क्लब से गुजरने वाली नहर दर हकीकत एक ब्रांच केनाल है, जो एक बड़ी नहर अपर रावी दोआब से निकलती है। ये ब्रांच केनाल लाहौर में शामिल मशरक की तरफ से दाखिल होकर जुनूब मशरक की समझ चली जाती है। इसके एतराब में सड़क के साथ साथ सरसब्ज़ो शादाब नर्सरीज का एक तवील सिलसिला है। उसके बाद साहब सरवत अफराद का रिहायशी इलाका है। ये नहर और उसके किनारों पर इस्तादा बुलंदो पस्त दरख्त हवा से अटकेलियां करते हुए जन्नत नजीर मनाजर तहलीक करते हैं। हम आगे पीछे सफर करते हुए फरीद पाशा की कोठी पर पहुंच गए। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।